Hello students, today we are going to learn a new chapter for standard 6th, which is simple machines. What do you mean by simple machines? Simple machine means that the machines are simple to use. Like, what is machines? Such devices which are used to get more work done in less time and less effort are called machines. So, machines means that जो काम आप कम समय में कर सकते हैं, कम effort लगा के, that is called machines. Okay? I hope you understand this part. Now let us go ahead. Now, the nail cutter, the bottle opener, the wheel used to push the load down shown in the picture are all machines. Now, as you can see in these pictures, like you can see here the bottle opener, nail cutter, pulley, and also a man cutting this logs. Okay, so what do you mean by this? These are all machines. Bottle opener is also a machine. Nail cutter is also a machine which is meant to cut your nails. Okay, so all these things are machines. They have only one or two parts and a simple and easy structure. Such machines are called simple machines. Now, what is said is the machines which have only one or two parts. As you can see the bottle opener, it only has one or two parts, which is a easy structure of this machine. Okay, so which is light weighted and which has only one or two parts. These machines are called simple machines. So you need to remember this. This is an important line. Okay, so do remember this. Now, simple machines can be handled easily. Now, you can handle simple answers, right? Like that only, you can also handle simple machines. It's easy to handle. You cannot handle bulky machines, okay? But you can handle simple machines easily. And there are less chances of these machines breaking down or getting damaged. Now, if you use your nail cutter properly, okay, let's take an example of this nail cutter. If you use this nail cutter properly, अगर आप अच्छे से इस nail cutter को इस्तेमाल करते हो और इसे ज़्यादा नहीं गिराते हो, तो इसके टूटने के चांसेस कम होते हैं, राइट? यही इस लाइन में कहा जा रहा है. Okay, we use many such machines in our day-to-day life. Now this is a fact. हम ये सारी machines अपनी day-to-day life में use करते हैं, right? You use nail cutters. You also use some pulley to pull out some water. Okay, गाँव में आपने देखा होगा ऐसे well से लोग पानी निकालते हैं, right? तो हम ये सारी चीज़ें अपनी day-to-day life में use करते हैं. Okay, so now we are going to learn about complex machines. We learnt about some simple machines, right? हमने simple machines के बारे में पढ़ लिया है. Now we are going to learn about some complex machines. Now, what is complex machines? These machines have many parts which carry out many processes for completing a task. Okay, so इनके काफ़ी सारे parts होते हैं जो कि एक टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं. फॉर दिस पर्पस द पार्ट्स आर जॉइंड टू वन अनदर. तो अब इस पर्पस के लिए सारे पार्ट्स को जॉइन किया जाता है. जैसे आप साइकिल को देख रहे हो तो उसके सारे पार्ट्स अलग अलग बिखरे हुए नहीं हैं, सारे पार्ट्स जॉइंट है तब जाके एक मशीन बनी है, करेक्ट? सो वैसे ही यहाँ इस लाइन में कहा जा रहा है. Therefore, these machines are called complex machines. So अब इसे क्या कहा जा रहा है? Complex machines कहा जा रहा है. Okay, this
is called complex machines. Now, some of the parts of such complex machines are actually simple. अब क्या कहा जा रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स मशीन्स है इनके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो एक्चुअली सिंपल होते हैं. ओके तो इसका मतलब ये है कि जो सिंपल मशीन्स थे यहाँ ओके इन्हीं के पार्ट्स को मिलकर बनते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स मशीन्स. ओके द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन्स इज़ कॉम्प्लिकेटेड. नाउ अगर ये कॉम्प्लेक्स मशीन है ओके कॉम्प्लेक्स मशीन है तो इसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे? कॉम्प्लिकेटेड होंगे. इन आवर डे टू डे लाइफ we use simple or complex machines depending upon the task to be carried out and the time and efforts required to do it. ठीक है तो हम अपने डे टू डे लाइफ में ठीक है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सिंपल मशीन्स और कॉम्प्लेक्स मशीन्स हम दोनों ही यूज़ करते हैं. ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द टास्क वो डिपेंड करता है हमारे काम पे हमें क्या काम चाहिए. ठीक है और कितना टाइम लगता है उस काम में और कितना एफर्ट लगता है उस काम में. ओके ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके सो नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट सम मशीन्स. अब हम और मशीन्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं सिंपल मशीन्स के बारे में. ओके नाउ एन इंक्लाइंड प्लेन. What is a inclined plane, right? So अब हम ये देखते हैं. A heavy drum is to be loaded onto a truck. एक ड्रम आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है. ये ड्रम हमें ट्रक में डालना है. ओके रवि chose a plank A while Hamid chose the plank B. Rahi did not use a plank at all. ठीक है अब ये एक एक्टिविटी है. ओके सो इसमें क्या कहा जा रहा है ए वाला जो लड़का था रवि इसने एक प्लैंक यूज़ किया. ओके हामिद चूज़ अ प्लैंक इसने भी एक प्लैंक यूज़ किया. और जो दूसरी लास्ट लड़की थी राही उसने कुछ नहीं यूज़ किया. ओके उसके पास सिर्फ ड्रम है देख सकते हो आप और वो खड़ी है. तो अब ये कैसे इसको ऊपर लेके जाएगी? ओके तो हु वुड फाइंड द ड्रम हैवीएस्ट टू लोड. अब आप बताइए कौन सा अब किसको ज़्यादा हैवी लगेगा ड्रम. ओके सो इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जैसे आप स्लोप्स में भी दोनों के स्लोप्स में भी आप थोड़ा डिफरेंस देख सकते हो राइट. इसका लॉन्ग स्लोप है इसका थोड़ा शॉर्ट स्लोप है. तो सबसे इजी दोनों में से कौन सा होगा? इसको सबसे इजी होगा. करेक्ट इसको सबसे ज़्यादा इजी होगा ये लड़के को ड्रम ऊपर ले जाने के लिए. एंड दिस इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग इट. जहाँ की अगर आप ये लड़के को देखोगे बट इसका जो स्लोप है ये थोड़ा छोटा है जो कि उसको थोड़ी मुश्किल ला रहा है ड्रम को ऊपर ले जाने के लिए. ठीक है तो इसका भी इतना फास्ट नहीं होगा. ठीक है और इसको तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज शी यूज्ड नथिंग. ओके सो हमें यहाँ इस एक्टिविटी से ये समझ में आया कि इफ़ अ स्लांटिंग प्लैंक इज़ यूज टू लिफ्ट अ वेट. अगर एक स्लांटिंग प्लैंक यूज़ किया जाता है टू लिफ्ट अ वेट वी हैव टू बेयर लेस ऑफ वेट एंड लिफ्टिंग इट बिकम्स ईजियर. इधर ये कहा जा रहा है कि अगर हम एक स्लांटिंग प्लैंक जैसे हमने देखा कि ये एक स्लांटिंग प्लैंक था अगर हम ये यूज़ करते हैं ये हैवी ड्रम उठाने के लिए तो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है. ओके वो हमारे लिए इजी हो जाता है. सच अ प्लैंक इज़ कॉल्ड एन इंक्लाइंड प्लेन. नाउ such a plank is called inclined plane. You need to remember this. The more gradual the slope, the lesser is the weight we bear. ये कहा जा रहा है जितना लंबा स्लोप रहेगा ठीक है जैसे आप देख सकते हो इसका लंबा है एंड स्लांट रखा है इसने तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है. ओके ये इसमें कहा गया है. बट सच एन inclined plane is longer.
तो ये जो इंक्लाइन प्लेन होता है इट शुड बी लॉन्गर, तब जाके हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा. द स्टीपर द स्लोप द शॉर्टर एंड द इंक्लाइन प्लेन, बट वी हैव टू बेयर अ ग्रेटर वेट. यहाँ कहा गया है कि अगर हमारा स्लोप जो है वो शॉर्ट होगा, जैसे इस लड़के का है, तो उसको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. तो यही इंक्लाइन प्लेन का यूज़ होता है. तो इफ़ यू वांट टू, आपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा, लाइक इन स्कूल्स ऑल्सो, हॉस्पिटल्स, वहाँ पे एक स्लोप होता है so that the vehicles can go down easily, right? So today what we learned is, we learned about simple machines. Okay, we learned about some simple machines. We also learned about water machines. We learned about some complex machines. Also we learned about some inclined planes. Okay, so in this lecture we learned about some basic things about machines. Now in another lecture we will continue the chapter, and also do not forget to subscribe to our channel, and also click on the bell icon to get all the notifications. And if the video is helpful to you, do share it with your friends and also like the video. Thank you.